So let us start with this topic today. The topic name is equation of line parallel to x-axis and y-axis. So you have studied how to write the coordinate of a given point in the Cartesian plane. अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किसी भी गिवन पॉइंट के कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करने हैं ये हम लोगों ने अभी सीखा है। और किसी भी कोई पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन में गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हम लोग सीख चुके हैं, राइट। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस किस फॉर्म की होती है। डू यू नो वेयर द पॉइंट्स 2,0 -3,0 4,0 n, 0 for any real number and lie in Cartesian plane where these points lie. If ordinate is 0, y की वैल्यू अगर 0 है, where these point lie? They lie in first quadrant or second or third या fourth or on x axis or on y axis. So we have 6 choice. कहां पे लाई करेंगे ये पॉइंट? ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेंगे, y एक्सिस पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहां पे लाई करेंगे पॉइंट? सर फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करें। ओके, राइट। सेकंड पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, थर्ड पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ये फोर्थ पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस. Yes, they all lie on the x-axis, but do you know why they are lying on the x-axis? The next question is, do you know why they lie on the x-axis? Sir, because y is 0. Yes, absolutely right. Because on the x-axis, the y coordinate of each point is 0. In fact, every point on the x-axis is of the form x, 0. So every point on the x-axis is of this form x, 0, x, 0 like this. So ordinate of the point is always 0. Ordinate हमेशा 0 होता है if a point is lying on x-axis. Point on x-axis. x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n हो सकता है, n कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। So the point on the x-axis look like this. So this is the reason. This is the reason here, right? Now, after looking this point, if a point is lying on x-axis is like this. So this is the point. Looking, if you look at this point here on the x-axis. Could you please now guess what is the equation of the x-axis? X-axis की equation क्या होगी? After looking this point. And after looking these points, what is the common thing in all these points? If the point is lying on the x-axis, क्या आप गैस कर सकते हैं कि अब x-axis की इक्वेशन क्या होगी? What is the common thing you have observed in this all the points here? क्या कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? Sir, y is 0. Yes, right, absolutely right. So the equation of x-axis is, we can say that equation of x-axis की अगर हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, so the common thing on the x-axis is that on the x-axis y is always equal to 0, right? And similarly, if we talk about the y-axis, what is the equation of y-axis? What is the value of एप्सिका on the y-axis? एप्सिका की वैल्यू क्या होती है y-axis पे? Sir, 0. 0. So एप्सिका means x की वैल्यू, if a point is lying on y-axis, the value of x is always 0. x की वैल्यू हमेशा 0 होगी and that is the equation of y-axis, x equal to 0. So this is the equation of x-axis. x-axis की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू 0 होगा, x y दोनों आ गए हैं। और अगर y-axis की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू 0 होगा, राइट। So if you need to find out the equation of y-axis, so y-axis is look like this, vertical line, and the point on the y-axis is like this. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, y की वैल्यू चेंज होती रहती है और नीचे -1, -2,
-3, -4 लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे y की वैल्यू तो ऑलवेज चेंजिंग, y की वैल्यू चेंज हो रही है, y is changing at each and every point. And if you need to find out the coordinate at this point, -1, -2, -3, कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,4, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,3, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,2, 0,1, 0,0, 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4 like this. So what is the common pattern in this? अगर आप देखेंगे x की वैल्यू हमेशा 0 आती है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा so x is always 0. तो हम लोग अगर ऐसे कोई इंफॉर्मेशन पास करें कि x की वैल्यू 0 है तो उसे हमें समझ में आता है कि दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, राइट। एंड अगर हम लोग बोले x इज ऑलवेज 0, सो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस इक्वेशन। तो हम लोग y एक्सिस की इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप x एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑलवेज ऑन द x एक्सिस, इसमें पॉजिटिव चलता है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव चलता है, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो y की वैल्यू क्या होगी उसमें, इट्स ऑलवेज 0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट कैन बी रिटन एज 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, -0, -2, 0, -3, 0. So the value of y is always 0 if a point is lying on x-axis. This thing we have already discussed. Now the new thing is, if I ask you to what is the equation of x-axis, so that equation is y equal to 0. तो equation means जिसमें equality का sign आता हो. So this is the equation. और अगर आपसे पूछें what is the equation of y-axis, so the equation of y-axis is x equal to 0. I hope these two things are clear to you. So we conclude that, so this is the conclusion of the discussion. Y equal to 0 is the equation of x axis, right? And second thing is, second conclusion is this, x equal to 0 is the equation of y axis. So जब हम लोग x axis की equation find करेंगे तो y को 0 लेंगे, और अब जब हम लोग y axis की equation find करेंगे तो x is always 0, right? So now let's come to the topic here. तो topic था equation of line parallel to x axis and y axis. अभी हमने x axis और y axis की equation देखी है, पैरेलल वाली लाइन की नहीं देखी है। अब देखते हैं पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने क्या बताया अभी, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन बताइए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन बताते हैं आपको। Now consider the equation x minus 2 is equals to 0. If this is treated as an equation in one variable x only, then it has the unique solution x is equals to 2, which is a point on the number line. However, when treated as an equation in two variables, it can be written as x plus 0.y minus 2 is equals to 0. This has infinitely many solutions. In fact, they are all of the form 2, r, where r is any real number. Also, you can check that every point of the form 2, r is a solution of this equation. So as an equation in two variables, x minus 2 is equals to 0 is represented by the line AB in the graph in figure 2. So this is the graph given here, the graph of AP, and if you look at the graph of this line AB, it is parallel to the y axis. ये y axis के parallel है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, this graph is parallel to y axis. So now in today, now we are going to discuss about the equation of a line parallel to x axis and y axis. So let me explain the meaning of these lines here. Now consider the equation x minus 2 equal to 0. So basically this is a linear equation in one variable, x minus 2. x minus 2 equal to 0 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x equal to 2 भी लिख सकते हैं, राइट। एंड इफ इट ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ x, अगर हम लोग एक ही वेरिएबल में कंसिडर करें तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगी, और कुछ भी x की वैल्यू नहीं हो सकती है, ओनली द वैल्यू ऑफ x इज 2 इन दिस केस, राइट।
if we consider it into the one variable which is a point on the number line, तो ये क्या होगा, x equal to 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम लोग कर देंगे, राइट. एंड if we treat as an equation in two variable, तो अगर हम लोग इसको टू वेरिएबल में कंसिडर करें तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, राइट. अब इसको टू वेरिएबल में अगर हमने लिखा है, एंड वी नो दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस अ इक्वेशन हैव टू वेरिएबल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे. इनफैक्ट दे आर आल्सो ऑफ द फॉर्म 2r, तो x की वैल्यू 2 तो फिक्स रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट. Where r is a real number, also you can check every point of the form 2r is a solution of a equation. So x minus 2 is 2 variable, x minus 2 equal to 0 is represented by a line AB in the graph. तो ये क्या बोल रहा है, यहां से इसने क्या समझाया है, यहां से हमें कुछ थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आया, फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से. सो लुक एट दिस ग्राफ हियर. सो अगर आप ग्राफ देखेंगे ऑन दिस ग्राफ, तो यहां पे आप देखेंगे ये 2 फिक्स है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 फिक्स है, बिकॉज द इक्वेशन इज x प्लस 0 y इक्वल टू 2. सो दिस इज द इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन मीन्स ये कहां से आई है, x इक्वल टू 2 से, तो x की वैल्यू तो 2 फिक्स रहेगी. तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 फिक्स है, x की वैल्यू 2 फिक्स है, x की वैल्यू 2 फिक्स है, x की वैल्यू 2 फिक्स है. सो ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसमें x की वैल्यू क्या है, x value is 2 always, right, and this point is 2 minus 2. and if you look at the value of y की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है इस पॉइंट में, यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3. इसी चेंजिंग वैल्यूज के लिए y के लिए, तो x तो उसने फिक्स लिया और y को ले लिया r कोई भी नंबर, r में भी एनी रियल नंबर, राइट. सो इफ यू लुक एट, कम बैक टू द क्वेश्चन. सो अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन कैसी आ रही है, y एक्सिस के पैरेलल आ रही है. तो अगर x इक्वल टू 2 हमें लाइन बनानी है ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास करेगी, पासिंग थ्रू x इक्वल टू 2, राइट, पासिंग थ्रू x इक्वल टू 2. एक लाइन और बनाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लाइन बनाता हूं x इज इक्वल टू -1. अब मुझे लाइन बनानी है टू वेरिएबल में, तो x इक्वल टू समथिंग, जब भी x इक्वल टू समथिंग आएगा कोई कांस्टेंट, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. सो व्हाट इज दैट लाइन, सो दिस इज द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू -1, तो ये वाली लाइन होगी. इस लाइन पे अगर आप देखेंगे, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ x इज -1. तो देखो यहाँ पे ले लो पॉइंट, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ x इज -1. तो ये किसकी लाइन होगी, x इक्वल टू -1. ये किसकी लाइन है, x इक्वल टू 2. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन 2r. r मीन्स r चेंज होता रहेगा, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो दिस इज द ग्राफ, एंड इफ यू कंक्लूड द whatever I have discussed, we have discussed here, अगर मैं इसको कंक्लूजन करूं तो ठीक इसी तरह से ये कंक्लूजन है. अगर आप ग्राफ बनाएंगे लाइन का दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका ग्राफ होगा x इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है, a में भी एनी रियल नंबर, राइट. जैसे हमने x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 का यहाँ पे ग्राफ देखा है, तो a क्या था यहाँ पे, इस केस में a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे a की वैल्यू -1 थी, राइट. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस हियर इज, अगर आप एक लाइन बनाना चाहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, उसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा y इक्वल टू a होगा, राइट. द ग्राफ ऑफ अ लाइन दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू a. I hope this thing is little bit clear to you, and let me show you the graph of a line that is parallel to x axis. का ग्राफ मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो x axis के पैरेलल एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं. So this is the graph, this is x axis, right, and this is y axis. Suppose एक लाइन मैंने बनाई, so this is the line that is let me do it again. So this is the line that is parallel to x axis. तो ये x axis के पैरेलल है, ठीक है. ये किस पॉइंट से पास कर रही है, y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y 2 है, तो y के 2 से पास कर रही है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इस लाइन पे हमेशा 2 रहेगा. अगर आप देखेंगे तो y इज ऑलवेज इक्वल टू 2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. यहाँ पे देखो क्या दिया था, पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू a. यहाँ पे क्या आया, y इक्वल टू 2. तो a कितना हुआ, यहाँ पे a हुआ 2. तो 2 से पास करेगी तो y इक्वल टू 2, 3 से पास करेगी तो y इक्वल टू 3. लाइक दिस वी कैन प्रोसीड इन दिस. आई होप यू गॉट द लिटिल बिट आइडिया.
So I hope this thing is clear to you. X equal to a is a equation of line parallel to y axis, and y equal to a is a equation of line that is parallel to x axis. Let me explain it little bit more, then it will be clear to you. Suppose this is y axis and this is x axis. But this is y axis, vertical line is called y axis, and this is x axis. So let me explain this with the help of one more example, then it will be more clear to you. So this is x, this is y, right? Suppose एक लाइन मैं बनाता हूं यहाँ पे, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू, लेते हैं एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसे भी हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस में भी देयर, तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दिस लाइन लाइक दिस. So infinite lines can be parallel to x-axis. So infinite lines may be there, right? So x-axis के parallel infinite lines हो सकती हैं, like this, right? Suppose if this line is passing through 1, it is 1, and this point is 2, this point is 0, this point is -1, this point is -2. So अगर आप इस लाइन पे देखेंगे, इस लाइन, ये लाइन 1 इसको मार्क किया मैंने, ये 2 है, और ये एक्स एक्सिस को भी एक लाइन ले लेता हूं 3, 4, 5. तो इस एक्सिस पे आप मुझे y, इस लाइन के लाइन 1 के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एट दिस पॉइंट, इट्स 2, यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ पे भी इट्स 2, हियर ऑल्सो इट्स 2, यहाँ पे भी 2 होगी y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 2 होगी ऑन दिस लाइन. If you look at this, the value of y is fixed on this line. क्या होगी y की वैल्यू 2 इस लाइन के ऊपर. So y is fixed. तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 2 के इक्वल है. So इसकी लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to 2. Right? I hope this thing is clear to you little bit. Suppose इस लाइन की देखिए, ये लाइन कहां से पास कर रही है, y equal to 1. So इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, उन पॉइंटों की पे y की वैल्यू क्या होगी, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1. x कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं x की, बट द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 1. लुक एट दिस x एक्सिस. एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इफ अ पॉइंट इज लाइंग हियर, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, व्हाट इज इट्स ऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या होगी. So 0. Yes, absolutely right. So y की वैल्यू 0 होगी. So हमने ये देखा भी था, what is the equation of x axis? Equation of x axis is equal to y equal to 0. तो x axis की इक्वेशन क्या होती है, y equal to 0. अगर x axis की इक्वेशन हमें चाहिए तो x axis पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है. So that's why equation of x axis is equal to 0, right? So now come back to the look at this line 4. इस लाइन 4 को देखिए, लाइन 4 पे y की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज, y is equal to -1. So what is the equation of this line? इस लाइन ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y equal to -1. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सिमिलरली y equal to -2. अगर मैं एक लाइन बनाऊं जनरल एक लाइन यहां से बनाता हूं, लेट अस मेक अ जनरल लाइन. ये मैंने एक लाइन बनाई, राइट, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, राइट. अब जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो y से, जहां से भी y से पास करती है, जैसे 2 से पास की तो y equal to 2 हो गया, 1 से पास की तो y equal to 1 हो गया, y की वैल्यू 0 थी तो y equal to 0 हो गया, -1 से पास की y से तो -1 हो गई, y equal to -1, -2 से पास करेगी तो y equal to -2. सपोज ये एक पॉइंट a से पास कर रही है, a में भी एनी नंबर, a में भी एनी रियल नंबर, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, y is equal to, yes anyone, y equal to 2 से पास करती है तो y equal to 2 होता है, 1 से पास करती है तो y equal to 1 होता है, 0 से पास करती है तो y equal to 0 होता है, a से पास करेगी तो y equal to 3. y equal to a. yes absolutely right. तो ये हो गई इक्वेशन y equal to a. ये किसकी इक्वेशन हो गई, y equal to a. इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अगर x एक्सिस से पैरेलल होगी लाइन तो उसकी इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अगर कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगी, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. I hope this is the two very important point here. Equation of line parallel to
x-axis and equation of x-axis, and these points are clear to you now, right? Similarly, if you look at the second diagram, so let us find out the equation of first let us find out the equation of y-axis from here, from this diagram. So let me draw it on the next page. Okay, suppose this is x-axis, ये x-axis है, ये y-axis है, right? Now I need to find out the two things here. यहाँ पे दो चीजें find करने जा रहा हूं मैं. One is equation of y-axis की equation, right? And second is equation of line parallel to y-axis. Right? Now look at this. Suppose let us find out the equation of y-axis. If you look at this, a point lying on y-axis, अगर y-axis के ऊपर कोई point lie करेगा, what is the value of x for that point? So 0. 0. Yes, it's 0 always. 0. So x is equal to 0. So x is equal to 0 always on this y-axis. So that is the equation of equation of y-axis. वही तो y-axis की equation होगी. x equal to 0 का मतलब है it is the y-axis, right? And suppose क्योंकि ये 0 से पास कर रही है, ये x point 0 से पास कर रही है. Now let me draw a line here. Suppose एक line मैंने बनाई, this line, and this line is passing through point 1. ये 1 से पास कर रही है. So what is the value of y on for each and every point on this line? x की वैल्यू क्या होगी? Not y, x की वैल्यू. x की वैल्यू क्या रहेगी इस पे हमेशा? 1. Yes, x is equal to 1 always. So this is a line that is parallel to y-axis. तो ये रेड वाली लाइन है जो y-axis के पैरेलल है. तो इसकी इक्वेशन क्या आई? x equal to 1, क्योंकि ये x 1 से पास करती थी, right? So let me draw another line. Suppose this is the another line, and this line, ये एक जनरल मैं पॉइंट ले लेता हूं a. ये a पॉइंट से पास कर रही है. So what is the equation of, in this case, what is the value of x always on this line? x equals to a. x equal to a, right? a कुछ भी हो सकता है. इसमें इस केस में a 1 था, इस केस में a 0 था, इसके a नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव. So that is the answer for which question? Equation of line parallel to y-axis, x is equal to a. सर Yes. यहाँ पर सर लाइन तो 2 पॉइंट से बनती है ना, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं. Yes, we were defining the single point, but that second point is also there, and that second point coefficient is 0. X is equal to a means second point is also there. I am not writing it for the because of the simplicity. 0 dot y equal to a. This thing, right? The coefficient of y is always 0. तो y कुछ भी हो सकता है. Y may be 1. अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, at this point it's 1,1. At this point it's 1,2. At this point it's 1,3. तो y की वैल्यू चेंज होती रहती है रेगुलरली. 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. तो y तो चेंज होता रहेगा. And this it will become 0 because of its coefficient. अगर y को 1 लेंगे तब भी वो 0 हो जाएगा. y को 2 लेंगे तब भी वो 0 हो जाएगा. y को 3 लेंगे तब भी वो 0 हो जाएगा, right? So I am not writing it. It is there, but I am not writing it because of the simplicity, right? I hope this thing is clear to you. How to find out the equation? What is the equation of x-axis? What is the equation of y-axis? What is the equation of line parallel to x-axis parallel to y-axis? एक simplest way इसको याद करने का बता देता हूं आपको. देखो अगर आपको yes. सर एक बार आप पीछे वाले पेज पे जाइएगा. Yes. सर इसमें यहाँ पे 0 कहाँ से आया? Which 0? x plus 0 dot y. Okay. So basically यहाँ पे y disappear हो गया है. x equal to, suppose x equal to 1 लिखा हुआ है, right? y is not there. y यहाँ पे दिख नहीं रहा है, but वो है. अब y क्यों नहीं दिख रहा है हमें? Because वो 0 हो गया है. अब 0 क्यों हो गया है? y अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस इक्वेशन में, तो इन दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y का कोफिशिएंट 0 लेना होगा. So this will become 0 and it can be written like this: x plus 0 equal to 1, and I write it as x equal to 1. यहाँ पे मैं इसको x equal to 1 लिख रहा हूं इसलिए. तो समझ में आया? What are you asking? Am I able to give the answer for that? Yes, sir. Okay.
सो इसको रिमेंबर करने के लिए लेट मी टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस, कैसे आपको याद रखनी है इनको। एक रिमेंबर करने का एक छोटा सा बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, सो हाउ टू रिमेंबर, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स एक्सिस की, ठीक है, तो वर्ड एक्स एक्सिस तो यूज कर लिया मैंने, एक्स एक्सिस यूज कर लिया है मैंने वर्ड, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों वर्ड यूज होने चाहिए, एक्स एक्सिस और एक्स और वाई दोनों लेटर यूज होने चाहिए इक्वेशन में। इस तरह से माइंड में अगर सोचें हम लोग कि दोनों यूज करने हैं हमें, एक्स तो यूज कर लिया मैंने, एक्स एक्सिस में एक्स यूज कर लिया एक्स लेटर, तो यहां पे क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाने हैं तो वाई इक्वल टू, एक्स एक्सिस में वाई इक्वल टू क्या आती है? 0। आई बात समझ में? अगर आपको बनानी है वाई एक्सिस की इक्वेशन, तो वाई लेटर यूज कर लिया मैंने, वाई यूज हो गया, तो यहां पे क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू, वाई एक्सिस के लिए एक्स, तो वाई भी आ गया वाई एक्सिस के लिए, एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें पता होता है 0 होता है इन पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, राइट। So this is the equation of x-axis. This is the equation of y-axis. Now the next thing is parallel to x-axis. Parallel. तो ये मैंने 2 लाइन बनाई है और RL लिखा है, इसका मतलब है पैरेलल। पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पैरेलल टू x-axis. So y is equals to a. Yes, absolutely right. x यूज कर लिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा y इक्वल टू। अब पैरेलल है तो कहीं से भी पास कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, तो उस पॉइंट को ले लिया a, सो दैट इज y इक्वल टू a। सो x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है पैरेलली, तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर दैट थिंग्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू, वी कैन से दैट पैरेलल टू y axis. So what is the equation of line parallel to y axis? X is equals to a. Yes, its x is equal to a. So you must know, this knowledge is required. The equation of x axis क्या होगी? y equal to 0, right? Equation of y axis क्या होगी? x equal to 0. Equation of a line parallel to x axis के parallel है तो y equal to a. y axis के parallel है तो x equal to a. So y की बात कर रहे हैं तो x लेना है इधर, x की बात कर रहे हैं तो y लेना है. So like this, you can remember this thing. So this is all about this topic. This is all about this concept. So now let us solve some questions based on this concept. Then this concept will be more clear to you. Right? So now let us solve some questions from the exercise 4.4.